Can you hear me? Can you see the file? Can you see the file? Okay. So yesterday हमने coelom किया. Now we will again do the coelom revision. Open circulation and closed circulation हमने अभी तक किया नहीं है. I am going to do it today or tomorrow. ठीक है? But we have not done it, so don't worry. अगर हम कल तक करेंगे circulation तो होगा. If we don't do तो it will not be there. Okay? So जो भी हम tomorrow तक syllabus में cover करेंगे उतना ही आएगा. Okay? So now I am repeating what we did in coelom. Okay, so the nature of the body or the body cavity or coelom, it is the third key transition in evolution of animals. मतलब evolution of animals में जो अलग अलग characteristics हुए उसमें coelom का development is a very important or a key transition. मतलब it's a key evolutionary characteristic. ठीक है? So coelom is the secondary body cavity found in the bodies of some animals. जो एनिमल्स में सीलोम होता है उसको बोलते हैं coelomates. Animals which have coelom are called coelomates. So all animals don't have a coelom. Some animals have. Okay, it surrounds the digestive tract and other organs. That is the alimentary canal. And alimentary canal is called the primary body cavity. Alimentary canal is the first or the primary body cavity. Okay, जब embryonic development होता है तो पहले alimentary canal बनता है और फिर body wall में coelom बनता है. Okay, it lies between the body wall and the gut wall. ये हमने कल डिस्कस किया था. ये एनिलिड है तो बीच में ये गट है. गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल एंड बाहर है बॉडी वॉल. सो इट लाइज बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल. ओके, द प्रेजेंस एब्सेंस एंड टाइप ऑफ सीलोम is important characteristic for the basis of classification. गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल और गट वॉल मतलब वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये जो एंडोडर्म है येलो वाला. okay? So डिपेंडिंग ऑन वेदर एनिमल में सीलोम है या नहीं है और अगर है तो कौन से टाइप का सीलोम है, वी विल डिवाइड द एनिमल्स इनटू डिफरेंट फाइला. ठीक है, अब सीलोम एक्चुअली बनता है सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मतलब जिसमें मेसोडर्म होता है, बिकॉज सीलोम इज अ मेसोडर्मल कैविटी. ओके, विच मीन्स बिफोर ट्रिप्लोब्लास्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हम सीलम की बात करते ही नहीं. पोरीफेरा में या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हम सीलम का डिस्कशन नहीं करते. Okay, so normally we talk of triploblasts and then triploblasts में हम देखते हैं कि whether they have a coelom or not. Okay,
One group of animals, that is Platyhelminthes flatworms, ये diploblastic है, उसमें 3 germs layers होते हैं, but they do not have a coelom, so they are acoelomate. Okay, now generally after triploblastic animals, after Platyhelminthes, all triploblastic animals are bilateral and they also have a coelom. फिर भी we can divide the animals into 3 groups. Platyhelminthes, that is the first triploblastic group, they are acoelomates, they do not have a coelom. Okay, then there are pseudocoelomates. Okay, so acoelomates कौन है? Platyhelminthes. Pseudocoelomates कौन है? Nematodes. And from annelid onwards up to chordates, all animals are having true coelom or they are eucoelomates. Okay, so based on the coelom, अगर absent है तो they are Platyhelminthes. अगर उसमें pseudocoelom है तो we call them nematodes. And अगर eucoelomate मतलब true coelom है, then we call their animals are from annelid to chordates. Okay, अब ये pseudocoelomate क्या है हम आगे करेंगे, we will do that in front. Okay, आगे अपने टॉपिक में आएगा, just now today only we'll do it. Okay, तो अब ये लेफ्ट साइड में जो फिगर है, लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगुलर फिगर है, that is a cut section of a flat form. Okay, we expect that the flat form will be really flat, but actually center में वो थोड़ा raised होता है, तो it is slightly triangular, but overall the animal is flat. Okay, अगर ये फिगर देखोगे and this is a cut section of a Platyhelminthes worm, तो बाहर जो लाइनिंग है, सिंगल लाइनिंग ऑफ सेल्स, that is the ectoderm. Then the inner lining or the gut wall is made up of endoderm, and ये जो बीच में जो लाइनिंग है which makes the body wall. ओके, ये उसका बॉडी वॉल है, गट के बाहर जो भी है उसको हम बॉडी वॉल बोलते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्म. तो आप क्या देखोगे यहाँ मेसोडर्म में देयर इज नो कैविटी, सो दीज एनिमल्स आर एसिलोमेट एनिमल्स. ठीक है, फिर आप यहाँ देखोगे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विच इज यूसिलोमेट. ओके, तो ये एनिमल का क्रॉस सेक्शन है, जैसे एनिलिड भी हो सकता है, ये कॉर्डेट भी हो सकता है. ओके, उसमें आप क्या देख रहे हो, बाहर एक्टोडर्म है, बॉडी वॉल जैसे हमारे में हमारा स्किन होता है. ओके, फिर अंदर सेंटर में हमने कल डिस्कस किया था, यू हैव द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज एंडोडर्म. एंड बीच का जो लेयर है दैट इज द थिकनेस ऑफ द बॉडी वॉल. देयर वहां पे मेसोडर्म था, अब मेसोडर्म की जगह पे कैविटी आ गया, सो दैट डिवाइड्स द मेसोडर्म इनटू एन आउटर पैराइटल लेयर, या पतला सा मेसोडर्म रह गया है, एंड अंदर का विसरल मेसोडर्म रह गया है. सो ये मेसोडर्म जब वो एम्ब्रियो था तब पूरा का पूरा था, अब एडल्ट में वो कैविटी बन गया है. सो दिस इज द coelomic cavity. Okay, so it is outside the gut wall and inside the body wall. Okay, that is a coelomic cavity. Okay, अब ये नीचे वाला जो है pseudocoelom हम बाद में करेंगे, एक बार हम coelom बेसिक coelom का टॉपिक करेंगे, then before we go to the next topic I will tell you what is pseudocoelom also. Okay, अभी if you can imagine this, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, डेवलपिंग एम्ब्रियो में इफ यू रिमेंबर देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स. ओके, ऊपर देयर इज एन एक्टोडर्म, फिर ये मेसोडर्म है, और ये जो गट वॉल बन रहा है दिस इज द एंडोडर्म. ओके, तो जब एम्ब्रियो बन रहा है तो इस तरह से बनता है. ठीक है, तो ये मेसोडर्म है. इफ यू, ये आपको वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको समझ रहा है तो आई एम ट्राइंग टू explain you how the coelom happens. Okay, so ये पीछे का
जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑफ द एम्ब्रियो, दिस इज द डोर्सल और द बैक पार्ट। ओके, ये गट वॉल है और उसके आसपास ये कैविटी बन रही है। दिस कैविटी इज द सीलोमिक कैविटी। ठीक है, व्हेन वी डू मोर फिगर्स आपको ये और भी समझेगा। लेट मी गो डाउन। तो कल हमने जो फिगर देखा था, इफ यू रिमेम्बर, सीलोम का इन कॉर्डेट और ह्यूमन एनिमल, इट वाज लाइक दिस। ओके, तो ये एब्डोमिनल कैविटी है और उसमें जो सीलम बनता है दैट वी कॉल द पेरिटोनियम और द पेरिटोनियल कैविटी। दिस इज द बैक और द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल। सो ये है वर्टिब्रल कॉलम और ये जो है गट है। ठीक है, अब गट के बाजू में समझो फॉर एग्जांपल लिवर बन रहा है, तो लिवर भी सीलम के अंदर ग्रो होता है। वी हैव डिस्कस दिस यस्टरडे। सो इट ऑक्यूपाइज द सीलम। जैसे ये लिवर बड़ा होता जाएगा, ये सीलोम छोटा हो जाएगा। सो ग्रेजुअली एडल्ट में सीलोमिक कैविटी बहुत पतला रह जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी विल बी ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गन्स, चाहे वो इंटेस्टाइन हो या पेनक्रियाज हो या लिवर हो। ओके, सो बिकॉज ऑफ द सीलोम द ऑर्गन्स आर एबल टू ग्रो। ठीक है, नाउ पहले वी विल सी व्हाट आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है जिसके अंदर सीलोम नहीं है। ओके, so when we talk of coelom, we talk of only triploblastic animals. So the first group of triploblastic animals is platyhelminthes and they do not have a coelom. ठीक है, लेकिन उसके बॉडी वॉल में आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है प्लेटीहेलमिन्थिस और फ्लैटवर्म्स। तो ये अंदर एंडोडर्म है, बाहर देयर इज अ एक्टोडर्म और ये बीच का जो ऑरेंजिश है दैट इज द मेसोडर्म। और मेसोडर्म में देयर इज नो बॉडी कैविटी, यू सी देयर इज नो कैविटी, लेकिन यहाँ पे सेल्स होते हैं। ये सेल्स होते, दे आर कॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स एंड दे आर फिल्ड विथ वाटर। दे आर फिल्ड विथ वाटर, सो देयर इज टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब द सेल्स विल नॉट कोलैप्स, पचक नहीं जाएंगे। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज फ्लैटवर्म्स जब इवॉल्व हुए थे तो वो दे यूज्ड टू लिव ऑन द बॉटम ऑफ द सी, नीचे की तरफ रहते थे, तो उनके ऊपर देयर वाज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ वाटर। तो वाटर का प्रेशर आता है, अगर वाटर का प्रेशर है तो एनिमल पचक सकता है, इट कैन गेट कंप्रेस्ड एंड इट कैन डाई। ओके, सो टू प्रिवेंट दिस, उसका जो बॉडी वॉल है उसके सेल्स आर फिल्ड विथ वाटर, सो दे आर टर्जिड, तो अपने बॉडी को कोलैप्स नहीं होता होने देता है। तो सच सेल्स आर कॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। दे एक्ट लाइक अ हाइड्रोस्केलेटन, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, टर्जिड मतलब कोई भी क्लोज्ड कैविटी में जिसकी मेम्ब्रेन्स अगर सॉफ्ट है और उसके अंदर जैसे आपके बलून में अगर आप पानी या हवा भरो तो वो टाइट हो जाता है, दैट इज टर्जिडिटी। ओके, पानी कम कर दो तो उसकी टर्जिडिटी, फर्मनेस कम हो जाती है। सो व्हेन यू फिल वाटर इन अ क्लोज्ड चेम्बर, ओके, तो दैट गिव्स इट टर्जिडिटी, टाइटनेस या फर्मनेस मिलता है। ओके, सो यहाँ पे बॉडी वॉल में इस तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया नहीं क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इन द पेरेनकाइमा देर आर, sorry, in the mesoderm there are parenchymatous cells which are filled with water. Okay, so now the parenchymatous tissue lies between the gut and the body wall, मतलब mesoderm में जो मैंने अभी ऊपर बताया, and it keeps the body firm and prevents collapse due to hydrostatic pressure of the ocean water. ये जो मैंने आपको बताया, पानी के प्रेशर में वो दब नहीं जाता है। ओके, तो फर्स्ट एनिमल्स जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, सॉरी, first triploblastic animals, that is platyhelminthes, they are acoelomates, they do not have a coelom. लेकिन उसके बाद जो भी एनिमल्स आ रहे हैं दैट इज निमेटोड ऑनवर्ड्स, दे विल हैव सीलोम। ओके, उनके बॉडी वॉल में हमेशा सीलोम होता है। अब वो सीलोम हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया, दे आर ऑफ टू टाइप्स। यू कैन हैव अ स्यूडो सीलोम जो आपको निमेटोड्स में मिलेगा, एंड
ऑल अदर एनिमल्स में एनिलिड से कॉर्डेटा तक आपको यू सीलोम मतलब ट्रू सीलोम मिलेगा. ओके, सो सूडोसीलोम एंड ट्रू सीलोम. पहले हम यू सीलोम करेंगे और बाद में वील डू सूडोसीलोम. अब आप नीचे देखोगे तो ये ग्रे में मैंने कुछ फॉन्ट लिखा है. मतलब क्या, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब लिटरली आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन जानकारी जरूरी है बिकॉज इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर अदर टॉपिक्स. ओके, सो जो यू सीलोम या ट्रू सीलोम होता है that is of two types. One is called a schizocilum and other is called an enterocoelom. Okay, वो क्या है हम आगे देखेंगे. ये जो हमने yesterday स्ट्रक्चर किया था, this is the cross section of any chordate animal from or annelid from annelid to chordate. outer ectoderm, inner endoderm, ये gut wall. तो ये जो थिकनेस है उसको हम बॉडी वॉल बोलते हैं. बॉडी वॉल में मेन स्ट्रक्चर होता है मेसोडर्म, और मेसोडर्म के बीचों बीच अगर एक कैविटी बनता है that is called the coelomic cavity. Okay, so now we'll see what is the definition of coelom. अभी तक हमने सब फिगर्स देखे, उसका explanation देखा. So what is a true coelom or a eucoelom? It is a body cavity that lies within the mesoderm. ये हमने देखा ना, mesoderm के बीचों बीच होता है ये. And it is lined completely by mesodermal cells. उसके सब तरफ mesodermal cells ही है. So it is lined completely by the mesodermal cells. So ऐसे बॉडी कैविटी को हम ट्रू सीलोम बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि वी हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सूडोसीलोम. जब हम सूडोसीलोम करेंगे देन यू विल रियलाइज के सूडोसीलोम इज नॉट अ मेसोडर्मल कैविटी and it is not lined by mesodermal cells. So it is a cavity in the body wall, but it is not true. True matlab it has to be inside the mesoderm and lined by mesodermal cells. Okay, now आपने जैसे देखा, हमने we have discussed this. एक बार ये कैविटी जो बन जाती है मेसोडर्म में, ये कैविटी जो बन जाती है सीलोम, then it divides the mesoderm into two parts, an outer parietal layer of mesoderm and an inner visceral layer of mesoderm. Okay, so whenever a body cavity is formed, you have an outer parietal layer of mesoderm and inner visceral layer of mesoderm. ठीक है, अभी बहुत सारे एनिमल्स में जैसे यहाँ पे दिखाया है, द सीलोम मे नॉट बी कंप्लीट. कुछ कुछ जगह पे ये मेसोडर्मल सेल्स कंटिन्यू होते हैं. ओके, सो पहले ये पूरा पर्पल था, फिर पर्पल के बीचों बीच एक कैविटी बन गया, बट नॉट नेसेसरी कि ये कैविटी पूरा गोल गोल होगा. एट सर्टेन एरियाज मेसोडर्म विल स्टिल रिमेन. ठीक है, तो एट दिस प्लेस जहाँ मेसोडर्म बच गया है, what you will have, you will have a lining of the coelomic cavity. यहाँ पे एक सेल layer of cells होगा, यहाँ पे layer of cells होगा. Okay, so when you have two layers of this coelomic lining, ये जो यहाँ इसका lining है, इसका lining with some mesoderm in between, तो ऐसे body part को we call a mesentery. mesentery, ठीक है, ये mesentery means a double lining of coelomic cavity, double lining with some mesoderm inside. इसका रोल और इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे. अभी yesterday जो हमने वापस किया था कि what are the two types of true coelom. Okay, so one is a schizocoelom and one is a enterocoelom. Okay, पहले तो देखो नीचे वाला जो एनिमल दिखाया है क्रॉस सेक्शन में, उसमें क्या दिखाया है, बाहर एक लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स दिखाया है, अंदर येलो कलर का एंडोडर्मल सेल्स दिखाया है विच इज द लाइनिंग ऑफ द गट और द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो ब्लू है दैट इज द मेसोडर्म, द थर्ड जर्म लेयर, और उसके बीच में क्या दिखाया है, ये कैविटी दिखाया है. सो दिस कैविटी विच इज लाइन बाय रेड सेल्स, एक्चुअली वो आपको डिफरेंशिएट करने के दिखाया है, बट दे आर एक्चुअली मेसोडर्मल सेल्स ओनली. मतलब ये जो ब्लू में जो सेल्स है उन्हीं में से कुछ सेल्स मॉडिफाई होके ये कैविटी का लाइनिंग बनाएंगे. ओके, सो नाउ यू हैव दीज टू कैविटीज
आर इनसाइड द मेसोडर्म, ये मेसोडर्म के बीचों बीच है. ओके, सो इट इज अ कैविटी इन द मेसोडर्म वन, एंड ऑल्दो ये यहाँ पे रेड कलर अलग से दिखा है, बट इट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल सेल्स, सो दैट इज अ ट्रू सीलोम. अब ट्रू सीलोम दो तरह से बनता है. ओके, अगर ये लेफ्ट साइड का फिगर है, वैसे आप अगर देखोगे तो वो शीजोसीलोम इस तरह से बनता है, और ये राइट साइड का फिगर देखोगे तो एक अलग तरीका दिखाया है, एंटेरोसीलोम ऐसे बनता है. सो नाउ वी विल सी हाउ द सीलोम इज फॉर्म्ड. ये कमिंग बैक टू द अपर लेफ्ट फिगर, तो अपर लेफ्ट फिगर इज ऑल्सो एन एम्ब्रियो, लेकिन इट इज इन एन अर्लियर स्टेज, वेरी यंग एम्ब्रियो दिखाया है, जहां पे सीलोम अभी तक बना नहीं है. सो यहाँ पे भी व्हाट यू हैव एक्टोडर्मल सेल्स, यू हैव द गट लाइनिंग इनसाइड, और बीच में ये मेसोडर्म है. अब मेसोडर्म में क्या हो रहा है, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और फिर उनके बीच में गैप बनेगा. वो गैप बनेगा तो नीचे जैसे दिखाया ऐसे कैविटी बनेगी, दैट इज अ सीलोम. सो मेसोडर्मल सेल्स में कुछ सेल्स मर जाते हैं और कुछ सेल्स एक गैप बनाते हैं, एंड दैट बिकम्स द कैविटी और द सीलोम. ओके, सो जब ये ओरिजिन ऑफ द सीलोम मेसोडर्मल सेल्स में ही होता है, एंड लेटर ऑन इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल कैविटी, तो दैट इज कॉल्ड अ शीजोसीलोम. तो शीजोसीलोम ऐसे बनता है. लेकिन कुछ एनिमल्स जो एडवांस्ड एनिमल्स है, उसमें जो सीलम बनता है वो एक अलग तरीके से बनता है. ओके, यहाँ क्या देख रहे हो, येलो जो है वो गट है, मतलब एंडोडर्म है. तो गट मतलब एलिमेंट्री कनाल में से कुछ ऐसे पाउचेस बाहर आते हैं, पाउचेस फिल्ड विथ फ्लूइड. अब ये जो पाउच बना है, दैट इज गॉट अ लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, तो आइडियली इसको येलो दिखाना चाहिए था. ओके, अब ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, येलो और रेड अलग अलग हो जाएंगे. तो ये रेड पाउच जो है वो पूरा का पूरा पूरा मेसोडर्म में आपको मिलेगा, जैसे नीचे दिखाया है. फिर मेसोडर्म में आने के बाद दैट कैविटी जो बनी है वो इंक्रीज होगी इन साइज. ओके, फिर भी लाइनिंग क्या होगी ओरिजिनली, उसमें ये गट या एलिमेंट्री कनाल की ही लाइनिंग होगी, लाइनिंग ऑफ सेल्स. फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स दैट लाइनिंग विल रिमेन, गट वॉल का लाइनिंग रिमेन होगा, बाद में वो सेल्स मर जाएंगे, एंड द लाइनिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय मेसोडर्मल सेल्स. तो आखिर में तो उसको जिंदगी भर है, तो इट विल रिक्वायर न्यू सेल्स फॉर द लाइनिंग, सो मेसोडर्मल सेल्स वापस लाइन करेंगे. ओके, तो दोनों तरीके से आखिर में आपने क्या देखा कि यू हैव अ कैविटी विच इज लाइंग इन द मेसोडर्म, बट ऑल्सो लाइंड बाय मेसोडर्मल सेल्स. लेकिन इसके बनने के दो तरीके हैं. एक बनता है इन द शीजोसिलोमिक वे, तो ओरिजिन भी मेसोडर्म में होता है और बाद में लाइनिंग भी मेसोडर्म में होता है. लेकिन जो एंटेरोसीलोम बनता है कुछ यानी एडवांस्ड एनिमल्स में, उसमें शुरुआत होती है गट वॉल से, नॉट फ्रॉम द मेसोडर्म. फिर ये गट वॉल में से कैविटी निकलती है, वो मेसोडर्म की तरफ माइग्रेट करती है, फिर वो गट वॉल से सेपरेट होकर एक अपनी एक मेसोडर्मल कैविटी बनाती है, और फिर ये जो गट वॉल के सेल्स है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय मेसोडर्मल सेल्स लेटर ऑन. तो आखिर में वो भी एक ट्रू सीलोमिक कैविटी बनेगा, लेकिन उसका ओरिजिन जो है दैट इज फ्रॉम द गट वॉल. तो ऐसे एनिमल्स में जब फ्रॉम द गट वॉल ओरिजिन होता है सीलोम का, then that type of coelom or that type of body cavity is called the enterocoelom. ठीक है, ये आपको मिलेगा इन एनिमल्स अबव इकानोडर्म्स. सो इकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में आपको जो सीलम मिलता है that is a true coelom, it is a eucoelom but it is of the enterocoelomate type. Okay, and before echinoderms, जैसे बिफोर इकानोडर्म्स होता है मॉलस्क, आर्थ्रोपोड, एनिलिड, ये तीन में आपको यू विल गेट यूसीलोम, बट वो मेसोडर्म में से डेवलप होता है, सो इट इज कॉल्ड अ शीजोसीलोम. ठीक है, और एक चीज आपको जो याद रखनी है, कल हमने किया था टॉपिक ऑफ प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. Okay, so protostomes and deuterostomes, if you remember, they are animals which have tube in tube kind of a
अरेंजमेंट, बॉडी मॉर्फोलॉजी और बॉडी प्लान। और ट्यूब इन ट्यूब में अगर माउथ पहले बनता है तो ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, और अगर एनस पहले बनता है विच मीन्स माउथ सेकंड बनता है तो ऐसे एनिमल्स को हम ड्यूटरोस्टोम्स बोलते हैं। ओके, आई होप यू ऑल रिमेंबर, ये हमने कल किया था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वर्सेस द ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें मुंह माउथ पहले बनता है प्रोटोस्टोम्स, और जिसमें माउथ सेकंड बनता है दैट इज ड्यूटरोस्टोम्स। Humans are deuterostomes here. All animals are from echinodon onwards. Echinodon से सब animals they are all deuterostomes. Okay. So why are we comparing this? So protostomes are which animals? They are nematodes, annelids, arthropods, and mollusks. Nematodes, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, ये प्रोटोस्टोम्स है ना। तो पहला एनिमल जिसको ट्यूब इन ट्यूब प्लान मिला दैट वाज द निमेटोड, और निमेटोड में पहले माउथ बनता है, सो दे आर प्रोटोस्टोम्स। ओके, सो अप टू फ्रॉम निमेटोड टू मोलस्क यू हैव ऑल प्रोटोस्टोम्स, एंड फ्रॉम इकानोडम ऑनवर्ड्स, मतलब इकानोडम, हेमिकॉर्डेटा एंड ऑल कॉर्डेट्स, दे आर ऑल ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, अब why this is compared? All protostomes have a schizosylum. All protostomes have a schizosylum. यहाँ एक्सेप्शन है, हम नोट्स में देखेंगे, एक्सेप्शन है निमेटोड, क्योंकि निमेटोड में ट्रूसिलम नहीं होता है, सूडोसिलम होता है, हम सूडोसिलम करने वाले हैं। ओके, एंड ऑल ड्यूटेरोस्टोम्स हैव अ एंटेरोसिलम। ओके, सो ड्यूटेरोस्टोम्स कौन है? इकानोडम, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. So they are all deuterostomes, and they also have an entero kind of trucoelom or enterocoelom. And all protostomes except nematodes will have a schizocoelom, जो mesoderm में से ही बनता है. So that also you have to remember. Okay? ये जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है. Now I'll just tell you about pseudocoelom. Just 1 minute. तो सीलोम हमने क्या देखा? A true coelom is a body cavity which develops in the mesoderm and it is lined by mesodermal cells. Now what is a pseudocoelom? It is also a body cavity, it is also a secondary body cavity, but it does not lie inside the mesoderm and it is not lined purely by mesodermal cells. मतलब क्या? Okay, तो nematodes में ही आपको ये मिलेगा, nematodes and rotifers. Okay, they are the first protostome animals. Rotifers are also टाइप ऑफ निमेटोड्स, मतलब राउंड वर्म्स, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. सबसे ज्यादा निमेटोड्स में आपको ये रोटिफर्स मिलेंगे, लेकिन निमेटोड से हम ज्यादा मतलब रखते हैं क्योंकि निमेटोड्स हमारे पैरासाइट्स है. राउंड वर्म्स यू विल फाइंड इन द इंटेस्टाइन, यू विल हैव आल्सो प्लांट पैरासाइट्स, देयर आर निमेटोड्स. और रोटिफर्स बहुत डीप सॉइल में होते हैं, तो जनरली हम रोटिफर्स की डिस्कशन नहीं करते, बट रोटिफर्स आर आल्सो प्रोटोस्टोम्स. तो ये जो निमेटोड में जो कैविटी बनती है, बॉडी कैविटी, ये मेसोडर्म में से नहीं बनती है, इट हैपेंस फ्रॉम द ब्लास्टोसील. आई विल टेल यू व्हाट इट इज. ओके, हमने ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट किया था इन द जर्म लेयर डेवलपमेंट. आई एम गोइंग टू शो यू दैट फिगर. तो आपको याद क्या रखना है, जो सूडोसीलोम है वो मेसोडर्म में से नहीं बनता है बल्कि ब्लास्टोसील में से बनता है. ओके, और वो कैसे बनता है दैट आई एम गोइंग टू शो यू. ठीक है, अगर ये ब्लास्टोसील में से बनेगा तो उसकी जो लाइनिंग होगी दैट विल नॉट बी मेड अप ऑफ मेसोडर्म. Okay, and how it is made I will just show you. I'm going to that figure.
1 minute. Okay, I hope you remember this figure. हमने ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखाया है और उसमें हमने देखा है कि कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में the embryo divides and becomes a morula and then becomes a blastula or a blastocyst. ओके, ये इनर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, फिर ये इनर सेल मास आगे जाके एम्ब्रियो बनने वाला है. ओके, एम्ब्रियो बिकम्स डिप्लोब्लास्टिक्स और इट बिकम्स टू लेयर्ड. तो ये टाइम पे जो कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड अ ब्लास्टोसिस्ट. ओके, और ये एम्ब्रियो जो अभी फ्लैट है आगे जाके बेंड होगा, बेंड होगा. ओके, तो ये जो एंडोडर्म है वो बन जाएगा एलिमेंट्री कनाल. ये जो ऐसा है वो ऐसे हो जाएगा, तो अंदर एलिमेंट्री कनाल ट्रैप हो जाएगा. ओके, तो ये जो ब्लास्टोसील है वो बॉडी में, बॉडी वॉल में घुस जाएगी एंड द ब्लास्टोसील ये उसके बॉडी में घुस के दैट विल फॉर्म द सीलोमिक कैविटी. ओके, सो आई एम जस्ट शोइंग यू. 1 मिनट. अभी ये अगर एनिमल देखोगे नीचे वाला, ओके, दिस इज अ सूडोसिलोमेट. इसमें देखो आपने क्या दिखाया है. ओके, एनिमल है सूडोसिलोमेट, उसमें यू हैव अ सेंट्रल एलिमेंट्री कनाल, देयर इज अ गट, यू हैव एन आउटर एक्टोडर्म. ठीक है, और फिर ये बड़ी कैविटी है, ये बड़ी कैविटी है, लेकिन इसमें मेसोडर्म है ना, इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस में होता है. ओके, एंड अंदर जो कैविटी बन गई है उसका लाइनिंग इज मेड बाय द एंडोडर्म एंड आउटसाइड इट इज मेड बाय द एक्टोडर्म. सो दिस कैविटी जैसे हमने ऊपर देखा, इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील, not from mesoderm, and it is not lined by mesodermal cells, it is lined by endodermal cells and the ectodermal cells. So this, when जब cavity is not from, मतलब mesoderm में से नहीं बना है and it is not lined by mesodermal cells, then it is called a pseudocoelom. Okay, ये भी बॉडी कैविटी है, ये भी सीलोम की तरह काम करेगा, लेकिन उसका जो ओरिजिन है या डेवलपमेंट है वो अलग तरह से बनता है. So that kind of a cavity is called a pseudocoelom और आपको सिर्फ निमेटोड्स में मिलेगा वो. Okay, so what is the difference between a true coelom and a pseudocoelom? True coelom is made from the mesoderm. Pseudocoelom is made from the blastocele. True coelom is lined by mesodermal cells. बाहर की तरफ parietal mesoderm, अंदर की तरफ visceral mesoderm. But the pseudocoelom is lined not by mesoderm, it is lined by the endoderm and the ectoderm. तो ये दो उसके मेन डिफरेंसेस है. एक बार फिर भी कैविटी बनने के बाद ये सूडोसीलोम भी सीलोम का ही काम करता है और सीलोम जैसा ही काम करता है. अब ये सीलोम काम क्या करता है और उसके फायदे क्या है हम देखेंगे, चाहे वो सूडोसीलोम हो या वो ट्रू सीलोम हो. द जॉब दैट इट डज, इट इज द सेम. सो लेट अस सी दैट जॉब. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीलोम. One minute. Now we are doing the functions of the coelom. First, जैसे हमने कल भी डिस्क्राइब किया और आज भी किया, it allows the enlargement of organs in the growing embryo without distorting the body. Okay, हमने कल डिटेल में किया था कैसे लिवर, पेनक्रियास जैसे ऑर्गन्स वो सीलोम कैविटी को ऑक्यूपाई करते हैं, विच मीन्स बॉडी वॉल में ऑर्गन्स ग्रो करते, लेकिन ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होने की वजह से उसकी बॉडी का शेप या अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होती. So it allows the enlargement of organs in the growing embryo. Okay. Second, it allows free movement of organs within the body and the abdominal cavity. Okay. If you realize, हम हमारी बॉडी को जैसे योगा में लोग करते हैं, ऐसे आम आदमी भी अपने बॉडी को अलग अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट बेंड कर सकता है. इवन व्हेन वी डू दैट, अंदर के हमारे ऑर्गन्स दब नहीं जाते, क्योंकि
उसके आसपास ये सीलोमिक फ्लूइड या सीलोमिक कैविटी होता है विच इज फिल्ड विथ लिक्विड। तो वो लिक्विड लिक्विड होने की वजह से या सीलोमिक फ्लूइड होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स कॉम्प्रेस नहीं होते इवन व्हेन वी बेंड फॉरवर्ड और वी बेंड टू वन साइड। या जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू अबाउट सीडोसीलोम। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सीलोम। सो पहले तो एक एम्ब्रियो में इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ different organs. Second, it allows free movement of the abdominal organs and organs को compress नहीं होने देता है even when the organism will bend and twist the body. Okay? दूसरा, fluid होने की वजह से it will absorb shocks. Okay? हम कभी गिरेंगे, हमको मार लगेगा यहाँ on the abdomen वगैरह, तो it doesn't injure our internal organs because fluid होने की वजह से वो shock absorb कर लेता है। आप किसी को पंच भी मारोगे, ओके, अगर वो अंदर सिलोमिक फ्लूइड नहीं होगा तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन को इंजर करेगा, बट बिकॉज देयर इज फ्लूइड सो द इंटेस्टाइन आर प्रोटेक्टेड। ओके, सेकंड, इट प्रोवाइड्स अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन टू द एनिमल, है ना। हमारा बॉडी ऐसा लपकता नहीं है, अंदर से फर्म रहता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारे इंटेस्टाइन भी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, but because the intestines are floating in the fluid, coelomic fluid, so our body is firm and turgid. Okay, so this is because the coelom acts like an internal hydroskeleton, पानी से एक firmness देता है body को। Okay, second, it provides turgidity and prevents collapse, ना। अदरवाइज मैं किसी को पंच मारूंगा तो स्टमक में या एब्डोमेन में खड्डा पड़ेगा और वो खड्डा ही रहेगा, वो वापस बाहर आएगा ही नहीं अगर अंदर फ्लूइड नहीं आया तो। लेकिन व्हेन वी पंच समबडी, भले थोड़ा कॉम्प्रेस होगा लेकिन ज्यादा कॉम्प्रेस हम नहीं कर पाएंगे, तो इन अंदर के इंटेस्टाइन बच जाएंगे। सेकेंड, एज सुन एज वी गेट बैक द पंच, हमने कॉम्प्रेशन हटा दिया तो वापस वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। दैट इज बिकॉज अंदर के पानी या अंदर के सिलोमिक फ्लूइड की टर्जिडिटी की वजह से। एंड सीलोम ऑल्सो हैज इम्यून फंक्शंस। कुछ कुछ एनिमल्स में सीलोम में व्हाइट सेल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाइट सेल टाइप्स। व्हाइट सेल मतलब WBC टाइप के सेल्स होते हैं, एंड दे में प्रोवाइड सम इम्यूनिटी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सीलम इज सर्कुलेशन। ये एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, कुछ एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, लेकिन सीलम होता है जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। द फ्लूइड विल रीच द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और वहां से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो लाके कहीं ना कहीं डाल देगा। सो सीलम के थ्रू सर्कुलेशन भी हो सकता है इन द बॉडी। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सीलम, और ये आपको बाय हार्ट करना है। फर्स्ट, अलाउ एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन द एम्ब्रियो, allow free movement of organs and prevent compression, absorb shock, provide a hydrostatic skeleton, provide turgidity, मतलब prevent collapse in soft bodied animals, है ना। जैसे नहीं तो मॉलस्क वगैरह की बॉडी या वर्म्स की बॉडी पूरी पचक जाएगी अगर अंदर पानी नहीं होगा तो, या सिलोमिक फ्लूइड नहीं होगा तो। देन it may have immune function in some animals, it will have defensive cells like WBC. And last, very important, circulation, वो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा, एंड न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट्स, ये तीनों का सर्कुलेशन में एनिमल को मदद करेगा। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सीलोम। ओके, अगर वो सीडो सीलोम है तो भी वही फंक्शन करेगा, अगर वो ट्रू सीलोम है तो भी वही फंक्शन करेगा। ठीक है, नाउ गौरी, you said you want to understand pseudocoelom. It is actually a very difficult topic. You have to remember कि वो ब्लास्टोसील में से बनता है, and it is not lined by mesoderm, मतलब मेसोडर्म में से नहीं बनता है, but it is made from blastocele. अब वो जो पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ना, जैसे हमारा जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होता है, फिर 3 लेयर ऑफ सेल्स होता है, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, तो साथ में मेसोडर्म में ये कैविटी बनता है। ओके,
नाउ द होल फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो आपको सेकेंड ईयर में आएगा, और वो करने के बाद आपको थोड़ा और समझेगा। व्हाट इज ब्लास्टोसील? आपने शायद पढ़ा नहीं है ऊपर। हमने ये ब्लास्टोसील लास्ट वीक में किया है। आई विल शो यू व्हाट इज अ ब्लास्टोसील अगेन। 1 मिनट। ये हमने फिगर किया है डिटेल में। दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो में ये जो नीचे कैविटी बन रही है, देयर इज अ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और अ ब्लास्टोसील। और ये कैविटी और है बाजू में एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो आगे जाके 2 लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है और फिर 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है। तो जब ये बनता है तब ये कैविटी ये इसके अंदर सेल्स के अंदर घुस जाती है। सेल्स के बीचों बीच ये खाली जगह जगह घुस जाती है, एंड दैट becomes the cavity in the coelom in the animal. So the blastoceles becomes the body cavity. Okay, so that is about the blastocele. So now you know the functions of the coelom. You know कि सीलोम के हिसाब से कुछ एनिमल्स एसिलोमेट होते हैं, कुछ एनिमल्स सूडोसिलोमेट होते हैं, और कुछ एनिमल्स ट्रू सिलोमेट होते हैं। ट्रू मतलब यू सिलोमेट होते हैं। और अगर यू सिलोमेट है तो उसमें 2 टाइप होती है, दैट इज शीजोसिलोमेट एंड एंटरोसिलोमेट। दैट वी हैव डिस्कस्ड कि वो कैसे अलग अलग, ये जैसे ये वाले फिगर में हम देखा था कि ट्रू सिलोम भी बनने के 2 तरीके, एक वो एक्चुअली मेसोडर्म में से बनेगा और दूसरा बनेगा फ्रॉम द एंडोडर्म मीन फ्रॉम द गट वॉल। लेकिन दोनों चाहे पहले मैकेनिज्म से बने या राइट वाले दूसरे मैकेनिज्म से बने, आखिर में दे विल बी कैविटीज इन द मेसोडर्म एंड दे विल बी लाइंड बाय द मेसोडर्मल सेल्स। ओके, सो ऐसे कैविटीज को हम ट्रू सीलोम बोलते हैं। नाउ फेट ऑफ सीलोम। फेट ऑफ सीलोम मतलब सीलोम एक बार तो बन गया बॉडी वॉल में जब एम्ब्रियो बन रहा था, लेकिन उसका आगे क्या होता है? सीलोम जैसे कैविटी है वैसे ही रहेगा, या जैसे हमने बताया था कि ऑर्गन्स विल ग्रो इनटू द सीलोम। ओके, तो वो फेट ऑफ सीलोम है, आगे जाके सीलोम का क्या होता है व्हेन द एनिमल बिकम्स एडल्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, दैट वी विल डू आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, अभी 4:03 हो गया है, 4:10 को हम चालू करेंगे फेट ऑफ द सीलोम। ओके, व्हाट विल हैपन टू द सीलोम इन एडल्ट लाइफ। ओके, सो विल मीट एट 4:10। ठीक है।
Can you hear me? ओके, सो अब सीलम को क्या होता है आगे जाके? ओके, नाउ सीलम फॉर्मेशन स्टार्ट्स अलोंग विथ ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो में जब ऑर्गन्स बनने लगते हैं तब साथ में ही एम्ब्रियोजेनेस सीलोम भी बनने लगता है. एज द ऑर्गन्स विल फॉर्म एंड एनलार्ज, जैसे ऑर्गन्स बड़े होते हैं, दे विल पुश इनटू द सीलोम. हमने ये कल किया है. द ऑर्गन्स विल ग्रो इनटू एंड पुश द सीलोम and they will occupy the space left behind. Okay, due to this the coelom undergoes morphological changes. मतलब सीलोम का शेप पूरा चेंज हो जाता है. वो मेरे हैंड ड्रॉन फिगर में अब मैंने किया था, इफ यू रिमेम्बर. ये वाले फिगर में आपको मैंने समझाया था कि सीलम कैसे अपना शेप बदलता है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन्स ग्रो होते हैं. the organs will grow into the coelom. Okay, one minute. So now the coelom will undergo complex morphological changes. उसके शेप बदलेंगे. Okay, then in mammals a major partitioning of the coelom happens due to formation of the diaphragm. कल मैंने किया था, जैसे डायफ्राम बनता है हमारे एम्ब्रियो में तो सीलम के दो हिस्से हो जाते हैं, एक थोरैसिक हो जाता है और एक एब्डोमिनल हो जाता है. सो एब्डोमिनल सीलम या एब्डोमिनल कैविटी को पेरिटोनियम बोलते हैं. ओके, एंड देन द थोरैसिक होता है ऊपर, उसके भी हिस्से बन जाते हैं. दैट कैविटी, एक के अंदर हार्ट बैठ जाता है और दो के अंदर लंग्स बैठ जाते हैं. So the thoracic coelom gets divided into the pleura, दो प्लूरा जो लंग्स का कवरिंग है, and it becomes also the pericardium. तो क्वेश्चन क्या आता है? What are the parts of the thoracic coelom? So the parts are two pleura and one pericardium. Okay, what is the basic partitioning of the coelom in the developing embryo? So we have to say that the embryo is divided into two parts by the diaphragm, the thorax, abdomen. So coelom also gets divided into a thoracic coelom and an abdominal coelom. Okay, सीलोसीलम हमने किया है, फंक्शंस ऑफ सीलम किया है, सीलोमिक फ्लूइड. ओके, सीलोमिक फ्लूइड में क्या होता है? It serves as a transport of gases, nutrients and waste products that we have already done. Okay, it acts as a temporary reservoir for waste. एनिमल के बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है, नाइट्रोजन वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट, पहले वो सीलम में आता है और फिर सीलम में से बाहर जाता है. ओके, देन इट सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम. मैंने बताया था इट हैज WBC लाइक सेल्स व्हिच आर लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स. दे आर कॉल्ड सीलोमोसाइट्स. दे आर फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स, मतलब व्हाइट सेल्स जो फेगोसाइटोसिस करते हैं. सो दे हैव एन इम्यून फंक्शन. ओके, so this is about the coelom, and you have to read this, you have to remember all the figures and structures, and it is a very very important topic. Now what is a reduced coelom? Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि सीलम पहले बनता है, साथ में ऑर्गन्स बनने लगते हैं, फिर ऑर्गन्स सीलम की जगह लेके सीलम बहुत छोटा हो जाएगा. तो सीलम कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि वो कैविटी जैसा दिखता ही नहीं, बिकॉज द टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम इतने नजदीक आ जाएंगे कि बीच में हार्डली कुछ फ्लूइड होगा. सो वी से दैट द सीलोमिक कैविटी और द सीलोम इज टोटली रिड्यूस्ड. तो जैसे इंसानों में भी सीलोम इज टोटली रिड्यूस्ड. ओके, इफ यू सी द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मतलब एब्डोमिनल सीलम, तो उसमें कैविटी अभी बहुत कम है, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय आवर इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैनक्रियास. तो द सीलोमिक कैविटी पर से वो डिक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड सीलोम. ओके, आप थोरैसिक सीलम देखोगे तो शुरुआत में जब एम्ब्रियो बन रहा है तो पूरे थोरैक्स में कैविटी भरी हुई है. द होल थोरैक्स इज लाइक अ कैविटी, दैट इज अ सीलम. लेकिन फिर जैसे हार्ट डेवलप होता है
तो वो सीलोम की जगह ले लेता है। लंग्स डेवलप होते हैं तो वो सीलोम की जगह ले लेते हैं। सो ग्रेजुअली द सीलोम डिक्रीजेस एंड it is replaced by organs, or the space is occupied by the organs. So that is called a reduced coelom. Okay, कुछ एनिमल्स है जैसे एनिलिड्स है, उसमें सीलोम रिड्यूस नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, बिकॉज उसके ऑर्गन्स को ओके जितना उसका बॉडी वॉल ग्रो होता है उतना ही उसके ऑर्गन्स ग्रो होते हैं। लेकिन हमारा जो बॉडी वॉल है, जैसे हमारा ट्रंक है, कंपेयर टू दैट हमारे इंटेस्टाइन्स बहुत लंबे हैं। जैसे हम बड़े होते जाते हैं फ्रॉम फीटस टू इन्फेंट टू चाइल्ड, तो द लेंथ ऑफ आवर इंटेस्टाइन इंक्रीजेस। सो ग्रेजुअली वो सीलम की जगह ले लेता है, और फिर सीलम कम जगह लेगा, और जैसे ये यहाँ कैविटी दिख रही है, वी विल हैव मल्टीपल लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन जो पूरा एब्डोमिनल कैविटी या सीलोमिक कैविटी को ऑक्यूपाई करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ रिड्यूस्ड सीलोम। अब एक लास्ट टॉपिक अबाउट हीमोसील। What is a hemocoel or what is a hemocoelom? Okay. Now there are some animals जैसे आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकानोडर्म्स एक्सेट्रा। आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकानोडर्म्स, इसमें क्या होता है कि जो कैविटी बनती है सीलोम, I said in most of the animals it gets reduced because it is occupied by other organs. तो जैसे आर्थ्रोपोड का या मोलस्क का एम्ब्रियो बढ़ता है, उसके ऑर्गन्स की साइज बढ़ती है, तो ग्रेजुअली द सीलोम गेट्स रिड्यूस्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, उनके बॉडी वॉल में और एक कैविटी बनती है। आफ्टर द सीलोम इज रिड्यूस्ड, देयर इज वन मोर कैविटी व्हिच इज फॉर्म्ड, एंड दैट इज कॉल्ड द हीमोसीलोम। ये हीमोसीलोम और हीमोसील इज पार्ट ऑफ ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन हम कल करने वाले हैं, तो व्हेन वी डू ओपन सर्कुलेशन, दैट टाइम आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस। Okay, but you have to remember that hemocoel is a cavity which will form after coelom is reduced. After coelom is reduced. Okay, हमने बताया प्राइमरी बॉडी कैविटी वाज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंडरी बॉडी कैविटी इज अ सीलोम। अब ये हीमोसील जो बनता है सीलोम के बाद, दैट इज अ टर्शियरी बॉडी कैविटी। ओके, फिर भी ये हम कल करेंगे, we'll do this tomorrow. Now we are going to the last topic of the basis of classification का last characteristic, that is segmentation or metamerism. Okay, so segmentation मतलब क्या, the animal समझो एक worm है, that is divided, the body of the animal is divided into small parts. Each part is called a segment. Okay, so when the body of an animal is divided into small parts, we say that the body is segmented. Okay, अब जब पार्ट्स बॉडी को डिवाइड करोगे तो कभी कभी क्या होता है, inside each segment some organs will be repeated, but in some animals the organs are not repeated. I will explain you what it means. Okay, abhi if you see our body, okay, if you see our body, then our main body is, as I told you, from the mouth to the anus. तो हमारा जो trunk है, that is our main body, और हमारे जो limbs है, hands and legs, they are appendages, they are not part of the body, they are extensions of the body. But in our body we have, for example, the vertebral column. उसमें 26 वर्टिब्रा है, 26 वर्टिब्रा में से 26 नर्व्स निकलती है दोनों तरफ, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. सो यू हैव nerves coming out from there. With each nerve there are muscles in the body. Then in the thoracic region you have the ribs, जो भी there are 12 pairs of ribs, तो 12 बार repeat होते हैं. Okay, so from each vertebra you have a rib coming, you have nerves and you have muscles. This forms a segment. So our body अंदर से आप देखोगे तो it is made up of different segments. However, on the outer side, हमारी जो skin है, skin is not segmented, it is one piece.
So from outside we don't realize that हमारा body is also actually segmented from inside. Okay. फिर आप you will see an animal like arthropod or you will see a cockroach. अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. It has a head, it has a thorax and an abdomen. Head, thorax and abdomen. Okay, let me see. मैंने फिगर दिखाया गया, यहाँ फिगर नहीं है. So the body is divided into 3 parts: the head, thorax and the abdomen. But on the cockroach अगर आपने दिखा होगा, अगर wings जब उसके खुले हुए होते हैं तो आप देखोगे कि उसके body के ऊपर आपको segments दिखेंगे. You will see that the body is divided into segments. वैसे ही आप earthworm देखोगे, you will see that the body of the earthworm is also segmented. हमने जो ऊपर सीलम का फिगर दिखाया, I'll just show you. What we see, this is the body of an earthworm. The body of the earthworm is also segmented. Okay. Now before earthworm, all animals including nematode is also a worm, लेकिन उसका body is smooth, it is in one piece, it is not divided into segments. Okay, so such animals जिसके body में segments नहीं है, they are called unsegmented animals. और जिसके body में segments है, they are called segmented animals. Okay, so annelids, arthropods and all chordates, they are segmented animals. Okay, means that the body is divided into different segments. Now अलग अलग segment जो है उसमें there will be many parts which are repeated again and again. जैसे for example मैंने हमारे बॉडी में बताया कि वर्टिब्रा आर रिपीटेड, मतलब हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स आर रिपीटेड. फिर हमारे स्पाइनल नर्व्स आर रिपीटेड, हर एक सेगमेंट में एक एक नर्व होती है. फिर नर्व्स के साथ मसल्स भी है जो रिपीट होते हैं, रिब्स भी है जो रिपीट होते हैं. सो व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स इन ईच सेगमेंट, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म मतलब क्या? सीरियल रिपीटेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स in the segments of the body. Serial repetition of certain parts in the segments of a body. I will just show you. I will give an example. 1 minute. Just 1 minute. I'm going to the internet to show you some figure. Okay, just hold on. मेरा गूगल सर्च दिख रहा है क्या? हाँ, 1 minute. Okay. तो यहाँ क्या दिखा है? You are seeing that the body of the earthworm is segmented from outside. Okay. लेकिन earthworm में आप ये देखोगे, one more thing, let me show you. कि बॉडी ऑफ द अर्थवर्म अंदर से दिखाया है, उसमें व्हाट यू आर सीइंग दैट देयर ब्लड वेसल्स आर रिपीटेड. हर एक सेगमेंट में ब्लड वेसल्स रिपीट होते हैं. ओके, इसके अलावा आप अगर उसका ये येलो देखोगे ना, गोल्डन येलो, दिस इज कॉल्ड द नर्व कॉर्ड. उसका ब्रेन अपर सेगमेंट में है और फिर ये नर्व कॉर्ड, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा होता है, वो नर्व कॉर्ड में भी आप देखोगे कि हर एक सेगमेंट में वो एक थिकनिंग है, हर एक सेगमेंट में थिकनिंग है. दैट थिकनिंग इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज कॉल्ड गैंग्लिया. सो द गैंग्लिया आर रिपीटेड. ओके, फिर हर सेगमेंट में से नर्व्स निकलेगी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगी. So when different parts are repeated in each segment, we say that there is serial repetition of parts, and the process is called metamerism. Metamerism means serial repetition of parts. Just a minute. जैसे हमारे बॉडी में रिब्स रिपीट होते हैं, हमारे बॉडी में वर्टिब्रा रिपीट होते हैं. Okay, so when repetition of certain parts happens, that phenomenon is called
metamerism. Now I'll show you in arthropod. Just a minute. Just 1 minute. I hope I can finish this topic. So आपको समझेगा. 1 minute. I'm showing you the figure of the different animals which are segmented. हाँ. Now यहाँ पे 3 टाइप के एनिमल्स दिखाया है. ऊपर दिखाया है अर्थवर्म. वो बाहर से भी सेगमेंटेड होता है और उसका जो बाहर का सेगमेंट या वॉल्स है जो सेगमेंट बनाती है बॉडी के, वो अंदर तक जाती है थ्रू एंड थ्रू द एनिमल. So internally also the body is divided into segments. The different segments are called compartments. So outside the body is divided into segments and inside the body is divided into compartments. तो अंदर और बाहर पूरा body is divided into segments outside and compartments inside. This is called a complete type of segmentation. अंदर भी और बाहर भी. फिर आप ये आर्थ्रोपोड देखोगे, यहाँ एक लॉबस्टर दिखा है. कॉकरोच भी ऑलमोस्ट ऐसे जैसे होता है. तो यू विल सी कि एक्सटर्नली द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. लेकिन अगर आप इसके ऊपर के सेगमेंट्स निकाल दोगे ना बाहर से, उसका काइटिन का एक्सोस्केलेटन निकाल दोगे, तो आपको पता चलेगा अंदर से बॉडी इज काइंड ऑफ वन पीस. इंटरनली इट इज नॉट सेगमेंटेड. दैट मीन्स व्हाट? Arthropods are externally segmented but internally not segmented. But when you see a fish, that means you see vertebrates or chordates. स्किन को आप बाहर से देखोगे तो इस तरह के सेगमेंट नहीं दिखेंगे क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे स्केल्स है. हमारी बॉडी पे पूरी बॉडी पे स्किन है तो बाहर से हमारा सेगमेंट्स नहीं दिखता है. बट इंटरनली यू सी दैट मसल्स आर सेगमेंटेड. फिर उसके पूरे बॉडी में वर्टिब्रा है, ये भी सेगमेंटेड है. फिर जैसे ये रिब्स, ये वर्टिब्रा में से बोन्स निकल रहे, हमारे थोरैक्स में रिब्स निकलते. So there is repetition of so many parts and internally our body is segmented, but from the outside the segments are not seen. Okay, so we will see that there are 3 types of segmentation. Annelids में अंदर और बाहर दोनों होता है, आर्थ्रोपोड्स में बाहर से होता है and chordates में अंदर से segmentation होता है. In addition, if there is serial repetition of parts, then it is called metamerism. तो अगर रिपीटेशन ऑफ पार्ट्स होता है, इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. एंड इन दैट केस each segment will be called a metamere. Yeah, I know time will get over. So each segment is called a metamere. तो अभी ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया. ओके तो अब कल हम बट थोड़े चालू है कलर बलर सब घाटी जैसे. हाँ, आंधी के लिए अच्छा है.